پاکستان کی ووادی سنتھا دعوت اسلامی اور امام حسین کی بے ادبی کرنے والے و امیر معاویہ کے بھکت الیاس اتاری کے سمرتھک سید قمر الدین دوارا راشٹری صوفی سید اشرفی کا اپمان کرنے کے معاملے میں دعوت اسلامی سمرتھکوں کے ساتھ ساتھ بریلوی پنتھ کے ملا مولوی بھی سید قمر الدین کے سمرتھن میں میدان میں اتر آئے ہیں۔ غورطلب ہے کہ 13 اکتوبر کو پنجاب کے ابوہر کے ایک پروگرام کا ویڈیو وائرل ہے جس میں سید قمر الدین کو صوفی اشرف سے تیز آواز میں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ آپ ہرا پیلا طوطا کہیں گے مجھے، میں دعوت اسلامی والا ہوں۔ جواب میں صوفی اشرف کہتے ہیں میں آپ کو نہیں الیاس اتاری کو طوطا کہتا ہوں۔ ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ قمر الدین یہی نہیں رکتے بلکہ مار پیٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی پروگرام میں دعوت اسلامی و قمر الدین سمرتھکوں دوارا صوفی اشرف کو کتھت گالی دینے اور گولی مار دینے کی بھی دھمکی دینے کی بات سامنے آئی ہے۔ اس معاملے میں درگاہ میرا داتا گجرات کے سجادہ نشین اور صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے راشٹریہ کارکاری ادھیش پیر صوفی سید خالد نقوی الحسینی نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ اشرف ملت حضرت محمد اشرف اشرفی الجیلانی کا اپمان برداشت نہیں۔ جس دن بھارت کا مولائی اور صوفی سماج دعوت اسلامی کے خلاف کھڑا ہو گیا اس دن ان لوگوں کو راستہ تک نہیں ملے گا۔ ہم پیر صوفی سنت سید خالد نقوی الحسینی کاریکاری ادھیکش صوفی خانقاہ ایسوسیئن اور درگاہ حضور سید علی میرا اتار کے سجادہ نشین گجرات سے 13 تاریخ کو ایک واقعہ گجرات پنجاب کے ابودر شہر ضلع بٹنڈا میں وہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ اس جلسہ میں ہندوستان کی مشہور اور معروف شخصیت محمد اشرف الجیلانی صاحب موجود تھے جو سجادہ نشین درگاہ حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور پیرزادے ہیں۔ آپ وہاں موجود تھے، جلوہ افروز تھے۔ اس وقت کسی معمولی سی بات کے اندر دعوت اسلامی کے ایک ملا مولوی قمر الدین اتاری نے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی تو کیا، جو ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے اس میں تو ہاتھا پائی تک کے جیسے ویڈیو سین ہے۔ جب وہ مولوی کی بدتمیزی کی حد دیکھی آپ نے، حضرت سے ہاتھا پائی کرنے تک کے لیے وہ آمادہ ہو چکا ہے۔ یہ اتاری مولوی ہے جو دعوت اسلامی پاکستانی کا مولوی ہے اور یہ راجستھان کے اندر کوئی گڑھ سنا جگہ میں اپنا مدرسہ چلاتا ہے۔ مدرسے کا نام ہے دارالعلوم جامعہ رضویہ نام کا مدرسہ ہے جو یہ گنڈا چلا رہا ہے، اور یہ دعوت اسلامی پاکستانی کا سرگنا ہے اور یہ راجستھان کے اندر کاریکرت ہے۔ ان کی دادا گیری آپ نے دیکھی کہ نام یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور آپ کی آل یعنی حضور کی آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اس قسم کے برتاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ کہیں بھی جو ہے یہ جو بتاتے ہیں ان کا جو لبادہ جو ان کا لباس ہے وہ الگ ہے، ان کے کاریہ کرنے کے طریقے الگ ہیں۔ ان کی شکل ہم نے راجستھان کے اندر ادے پور میں بھی دیکھی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ دن پہلے دہلی کے پاس انہی کے سنگٹھن میں سے دعوت اسلامی میں سے کچھ انتکوادی کریا کرنے میں لپت لوگ بھی پکڑے گئے اور دیگر وقتوں میں ان کا نام آتا رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے بھارت بھر کے اندر ان کی دادا گیری دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ تو میں تمام خانقاہوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ان کا بائیکاٹ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں ایک ہونا پڑے گا ان کے خلاف، کیونکہ ہم سجاد گان ہیں، سید زادے ہیں، اور ہم ہی نے ان کو بھارت کے اندر ہندوستان میں آج جو چھوٹ دے رکھی ہے۔ جس دن ہم ان کے خلاف کھڑے ہو گئے یہ انہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی بھارت میں سے۔ پہلے تو اپنے بچوں کو ان کے چنگل سے چھڑواؤ، جو بچے ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں انہیں الگ کرو ان سے۔ یہ کہیں بھی دعوت اسلامی نہیں ہے، یہ دعوت الیاسی ہے۔ یہ دعوت الیاس جو ہے یہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک گنڈا سرگنا گنڈا ہے جو اہل بیت کا کٹر دشمن ہے۔ دن بہ دن روز کچھ نہ کچھ یہ نیا فتنہ فساد وہاں سے کھڑا کرتا ہے اور اس کے نام کی چیزیں بھارت میں آتی ہے، اور اس کے نظریے میں دیکھیے کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے یہ دعوت اسلامی کا گنڈا مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ ان کو کتنی شرم کی بات ہے۔ تو ہم تمام سجادگان سے ایک سجادہ نشین ہونے کے باحثیت آپ سب سے یہ التجا کرتے ہیں کہ بھارت کے تمام خانقاہوں کے سجادے ان کے خلاف کھڑے ہوں
आवाज़ बुलंद करें और इनका बाइकआउट करें। और भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि ये पाकिस्तानी संस्था जो दावत इस्लामी भारत में कार्यरत है, लाखों के तादाद में इनके वॉलंटियर्स हैं, और जो ये करना चाहते हैं गजवाए हिंद के नाम पर भारत में, इन पे प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसे गुंडों को भारत के में से बाहर निकाला, भगाया जाए, और जो भी इनके साथ हैं इनके सामने सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने आज देखा, लोग हमें कहते हैं कि आप दावत इस्लामी के हमेशा खिलाफ रहे हो। आज देखिए कि इतनी बड़ी हस्ती, मशहूर व मारूफ सज्जादा नशीन दरगाह हजरत मखदूम अशरफ सिंगानी साहब के सज्जादा नशीन मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब के ऊपर हमला कर दिया। तो ये तो शर्मसार की बात है हमारे सैयदों के लिए और सज्जादा नशीनों के लिए और तमाम मेरे मुल्क के मुसलमानों के लिए कि इनकी दादागिरी अब हम नहीं सहन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इनको जवाब देंगे। सूफी खानका एसोसिएशन की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि इनका बाइकआउट किया जाए, और एक दरगाह के सज्जादा नशीन होने के तौर पर भी मैं मांग करता हूँ कि इनका बाइकआउट किया जाए। वहीं दूसरी ओर दावत इस्लामी समर्थकों और बरेलवी पंथ के लोगों द्वारा कमरुद्दीन के समर्थन और सूफी अशरफ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। सूफी अशरफ का समर्थन करने वालों को खारजी शिया करार दिया जा रहा है। अमीर माविया जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दावत इस्लामी सुन्नियों की तंजीम है जो सुन्नियों के लिए अच्छा काम कर रही है और अशरफ मियाँ उसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। यही नहीं, बरेलवी पंथ के मुल्ला मौलवी भी पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी के समर्थन में उतर आए हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थक बरेलवी पंथ के मुल्ला कलीम हनफी ने दावत इस्लामी की हिमायत करते हुए सूफी अशरफ पर संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। एक बयान जारी करते हुए कलीम ने कहा, एयरपोर्ट पर एक मुलाकात के दौरान अशरफ मियाँ ने मेरा नाम पूछा। मेरे नाम बताते ही वो आग बबूला हो गए, जैसे अभी मेरा कत्ल कर देंगे। कहने लगे कि तुम वही हो जिसने सैयद तनवीर हैदर की बेअदबी की थी। अपने बयान में कलीम ने सूफियों की कॉन्फ्रेंस को कूफियों की कॉन्फ्रेंस बताया। कलीम ने भारत का अपमान करते हुए भारत की संस्था उलमा मशाइख बोर्ड को नीचा और पाकिस्तान की तंजीम दावत इस्लामी की बड़ाई करते हुए उसे बहुत ऊंचा बताया है। ये वही मौलाना कलीम हनफी हैं जो पाकिस्तान के चरमपंथी मौलाना अशरफ आसिफ जलाली का भरपूर तरीके से समर्थन करते हैं। आसिफ जलाली को जब पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा की बेअदबी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब कलीम भारत के उन उलमाओं में से एक थे जिन्होंने अशरफ आसिफ जलाली के समर्थन में पाकिस्तान सरकार को खत लिखकर उसे रिहा करने की मांग की थी। कलीम ने उस सूफी कॉन्फ्रेंस को कूफी कहते हुए सवाल खड़े किए जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। साल 2016 में उलमा मशाइख बोर्ड की ओर से सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसमें भारत के अलावा दुनिया भर के सूफी शामिल हुए थे और भारत की कई बड़ी हस्तियों ने भी उसमें शिरकत की थी। सूफी अशरफ अशरफी उलमा मशाइख बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मामले में सूफी अशरफ ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए दावत इस्लामी का विरोध नहीं करता कि यह पाकिस्तान की संस्था है, बल्कि मैं इसलिए भी इसका विरोध करता हूँ क्योंकि इसकी विचारधारा अहले बैत यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशजों से सुन्नियों को दूर ले जा रही है। इलियास अत्तारी ने इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की है। इलियास ने कहा कि इमाम हुसैन ने मुहर्रम की 10 तारीख को नमाज ही नहीं पढ़ी थी, उन्होंने तो नमाज की नकल की थी। इलियास कहता फिरता है कि मुहर्रम की 10 तारीख जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए उस दिन शादी करो। अब आप ही बताइए ये विचारधारा किसकी है। सूफी अशरफ ने कहा, इलियास ने इस्लाम के इतिहास में वो काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया। इलियास ने माविया का उर्स मनाया और नारे लगवाए, बेगुनाह बेखता माविया माविया। अब इलियास यह करके साबित क्या करना चाहते हैं, जबकि सुन्नियों ने हमेशा माविया के मामले में खामोशी अख्तियार की है, ना ही माविया को बुरा कहा और ना ही उनकी शान में कसीदे पढ़े। अब ये इलियास माविया की शान में कसीदे पढ़कर बेगुनाह बेखता बताकर सुन्नियों में कौन सी नई विचारधारा को जन्म दे रहे हैं।
दरअसल दावत इस्लामी और बरेलवी पंथ द्वारा एक नई विचारधारा को जन्म दिया जा रहा है। इस विचारधारा में मौला अली से बगावत करने वाले, उनके खिलाफ जंग लड़ने वाले, उन्हें शहीद करवाने व उनके बेटे इमाम हसन को शहीद करवाने वाले माविया की पैरोकारी बयान की जाती है। माविया का ओहदा ऊंचा और मौला अली का ओहदा घटाने की कोशिश की जाती है। माविया द्वारा अपने शासन के दौरान मौला अली को गालियां दिलवाई जाती थीं और ऐसा करने से जो इनकार करता था तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। दरअसल तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान के इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने मौला अली को लोकतांत्रिक तरीके से अपना खलीफा चुन लिया। इस तरह से मौला अली चौथे खलीफा बने, लेकिन माविया ने खिलाफत हथियाने के लिए मौला अली से बगावत करते हुए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। यहीं से इस्लाम के विभाजन का सिलसिला शुरू हो गया। मौला अली के समर्थन में जो गिरोह खड़ा हुआ उसे शियाने अली और माविया के समर्थन में जो गिरोह खड़ा हुआ उसे शियाने माविया कहा गया। जबकि इन दोनों से इतर दो फिरके और खड़े हुए, जिसमें से एक ने दोनों को ही गलत बताते हुए अल्लाह की हुकूमत का ऐलान किया, जबकि दूसरा जो दोनों के सुलह समझौते व शांति की बात कर खून खराबे को रोकने की कोशिश में लगा था, सुन्नी कहलाया। खारजियों को मौला अली ने ठिकाने लगा दिया और सुन्नियों की कोशिशों के चलते खून बहने का सिलसिला थम गया। जंग तो बंद हो गई, लेकिन माविया की साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले माविया ने मौला अली पर मस्जिद के अंदर हमला करवाया। इतिहास में किसी मस्जिद के अंदर किया गया यह पहला आतंकवादी हमला था। 17 रमज़ान को यह हमला किया गया और 21 रमज़ान को मौला अली इस दुनिया से कूच कर गए। दावत इस्लामी और उसका समर्थन करने वाले बरेलवी पंथ के वो लोग ही देखा जाए तो शियाने माविया हैं, जो आज भी माविया की पैरोकारी में लगकर मौला अली से जंग लड़ रहे हैं और यह सब माविया के उमैयद साम्राज्य को फिर से कायम करने के लिए किया जा रहा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।